तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर खत्म करें। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी एट. We also identified food items eaten in different part of India and marked these on its map. A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry. Another may be rice, sambar, and a vegetable preparation of ladyfinger. Yet another meal could be appam, fish curry, and vegetable, curd, buttermilk, and pickle. Some example of meal uh, from different region are given in table 1.1. 1.1 table. Some example here given है. Sometimes we not really have all this variety of our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purposes? अब हमारा 1.1 आता है, इसमें हम लोग व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि फूड भोजन के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनमें क्या क्या होता है. वी नो दैट each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fat, vitamins, and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Do all food contain all these nutrients? With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, protein, and fats are similar to do as compared to the test of other nutrients. Let us do this test and record all our observation in table 1.2. For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper, sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Table 1.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box.
let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करेंगे। तो there are many type of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. तो अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट पढ़ा और अभी टेस्ट ऑफ स्टार्च की बारी है। चलिए रीडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जैसे कि आपको फिगर 1.1 में दिखाया गया है, आयोडीन की कुछ ड्रॉप उन पे डालेंगे। 1.1 मतलब कि ये टेस्ट फॉर स्टार्च में। अभी हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें फिर है कि ऑब्जर्व इट if there is any change in color of the food item. Did it turn blue, black? A blue-black color indicates that it contains starch. अगर ब्लू ब्लैक कलर आया सॉल्यूशन जो उस पर डालने पर में, आयोडीन की सॉल्यूशन डालने पर में फूड आइटम पे, तो आप मान सकते हैं कि उसमें स्टार्च है। तो चले आगे चलते हैं। Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 1/1। ऐसा ही करके आपको और जो भी टेबल में जो फूड सब दिया गया है उसमें आपको देखना है कि स्टार्च है या नहीं, और आपको उसमें देखना यस नो करके लिखना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर स्टार्च रॉ पोटैटो में स्टार्च है तो यस, मिल्क में स्टार्च है नो, तो यहाँ पे यस। तो ऐसे करके नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन में क्या होता है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, जैसे कि हम लोग सब में लेते हैं छोटी क्वांटिटी फूड का, फॉर टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड। अगर वो सॉलिड है जिसको आपको टेस्ट करना है प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो उसको आपको पहले पेस्ट या पाउडर बनाना पड़ेगा, या तो आप उसको ग्राइंड करें या स्मैश करें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम को। अब पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें आपको डालना है स्मॉल क्वांटिटी को। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप उसमें डालेंगे, कितना डालेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का भी 10 ड्रॉप डालेंगे टू द टेस्ट ट्यूब। फिर इसको सेक वेल करेंगे जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। हम लोगों ने 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का डाला है टेस्ट ट्यूब में, जो कि हम लोगों ने सैंपल लिया था फूड का, जिसको हमको प्रोटीन का टेस्ट करना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। कुछ देर के लिए टेस्ट ट्यूब को खड़ा रखें, बल्कि स्थिर रखें। व्हाट डू यू सी? अब देखते हैं कि आप लोग क्या देखेंगे। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? अगर जो सैंपल था वो हमारा अगर वायलेट चेंज हुआ तो ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। इसका मतलब है कि अगर वो सब्सटेंस जो हम लोगों ने सैंपल लिया था फूड का, अगर वो वायलेट कलर में चेंज हो जाता है ऐसा प्रोसेस करने पे, जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, तो वो श्योर है कि इसमें प्रोटीन की प्रेजेंस है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। और भी जो फूड आइटम्स है यही प्रोसेस आप करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी लेके टेस्ट ट्यूब में उसको पेस्ट बना के, अगर सॉलिड फॉर्म में है, और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा
कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाल के उस तरीके से स्टैंड बाई करेंगे। अगर उसमें वॉयलेट कलर चेंज हो जाता है वो सैंपल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब बात आती है टेस्ट फॉर फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. तो कि क्या करना है आपको, एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड ले लेना है आपको और एक पेपर में रैप करके उसको क्रश कर देना पूरा इस तरीके से। ऐसा ध्यान रखना है कि वो पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेट द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पैच? अब उस पेपर जो आपने मोड़ के उसको पाउडर बनाया है उसको स्ट्रेट कर देंगे और उसमें देखेंगे क्या कि पेपर में क्या कोई ऑयली पैच, जैसे कि तेल तेल जो होता है, क्या तेल जैसा पेपर में लगा हुआ है, ऐसा हम लोग अब देखेंगे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट रख के। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? क्या आपको कुछ लाइट दिखाई रही होंगी इस पैच के से? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. Oily patch जो होता है, जो oily patch अगर पेपर पे आ रहा है इसका मतलब है कि उस फूड में फैट है। तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड में जो हम लोगों ने सैंपल लिया है उसमें फैट है। The food items may sometime contain a little water. कुछ फूड कभी कभी जो है वाटर भी उसमें कंटेन होता है, तो उसमें वाटर भी आ जाता है। Therefore, after you have rubbed on its item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up. अगर पानी रहा तो उसको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो वो पता चलेगा कि वो सूख जाएगा आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयली पैच shows up आफ्टर दिस, अगर कोई ऑयली पैच आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर ऑयली कुछ नहीं दिख रहा होगा पेपर पे, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। What do these test tubes shows? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? Does the food item contain more than one nutrient? Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? तो ये टेस्ट हमें बता क्या रहा है? क्या उसमें फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, या सभी इस फूड में सभी प्रकार के आपको न्यूट्रिएंट्स हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो चलिए इसका जानते हैं, जानकारी आपको। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोगों ने टेस्ट किया, प्रोटीन के लिए एंड फैट के लिए। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो हम लोगों ने मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का टेस्ट किया है, तीन का। और भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उसके अंदर में, जैसे कि लाइक विटामिन, मिनरल्स और भी कुछ हो सकते हैं प्रेजेंट। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हम लोग को ये सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों है? तो इसका जानकारी अभी 1.1। What do various nutrients do for our body? तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स mainly provide energy to our body. Fat also gives us energy. In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, जो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। हालांकि फैट भी जो है एनर्जी देता है, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स ये फैट जो है आपको ज़्यादा एनर्जी देता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फूड कंटेनिंग फैट्स
एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें होता है उन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। जैसे कि आप 1.3 या 1.4 में दिखाया जाए, जैसे कि स्वीट पोटैटो आपका हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, ये सब इसमें फैट कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते होंगे। इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे होंगे फिगर्स में। तो अभी आता है हमारे पास नेक्स्ट चीज है फूड प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ। अब यहाँ पे एनर्जी इन फूड कहता है, तो यहाँ पे प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ में मदद करता है और इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं प्रोटीन को। अब आता है विटामिन की बारी। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। बीमारियां होती है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन जो है हमारे बॉडी को हेल्प करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारे बोन्स, आंखें, गम्स को हेल्दी रखने के लिए भी ये यूज में आता है, ये हमारे बॉडी में करता है। ये विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं विटामिन के। सम ऑफ दीज विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई and K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body need all type of vitamin in small quantities. हमारा बॉडी जो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई के और कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के जो तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट को नीड करता है हमारा बॉडी। तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए जो होती है हमारे आईज, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी जो है बहुत सारी बीमारियों से फाइट करने में हमारे बॉडी को मदद करता है। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो हमारे विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम, बोन और टीथ के लिए कैल्शियम का जो यूज करते हैं वो मदद करता है। फूड दैट आर in rich in different vitamin are shown in figure 1.6 से 1.9 में आपको डिफरेंट विटामिन फूड में पाया जाता है, उसमें वो लिस्ट है। जैसे कि सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो क्या होता है विटामिन ए से तो हमारी स्किन और आइज हेल्दी रहती है। जैसे कि पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है। और अभी आपको सोर्स है विटामिन बी का जैसे कि राइस, व्हीट, लीवर। और अभी आता है विटामिन सी, गुआवा हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, मिर्च जिसको बोलते हैं, लेमन, आंवला हो गया, टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, इस सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। और ऐसे ही आपको विटामिन डी के बहुत सारे सोर्स जैसे कि एग हो गया, फिश हो गया, विटामिन डी का सोर्स है। तो विटामिन डी का सोर्स आपको फिश, एग, ये हो गया, आपको लीवर हो गया, मिल्क भी है आपको विटामिन डी, मिल्क, बटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 1.10। कहाँ है तो फिगर 1.10। तो हमारे जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ के लिए जो कि बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस मिनरल्स की जरूरत होती है, तो उसका सोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये हो गया सोर्सेस आपका, ये है सोर्स को मिल्क, एग, ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ताकि मोस्ट ऑफ द जो फूड आइटम होता है उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस
while recording your observation, आप अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान ये नोटिस किए होंगे कि एक फूड में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ज़्यादातर in table 1.1. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much large quantity than the other. हालांकि ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो फूड सब्सटेंस होगा उसके उसमें एक जो न्यूट्रिएंट है ज़्यादा मात्रा में दूसरे के कंपेयर में हो. फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स. राइस जैसे एग्जांपल में राइस जो है में कार्बोहाइड्रेट जो होता है अदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उससे ज़्यादा होता है. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो हम कह सकते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है फूड का, भरपूर सोर्स है उसका कार्बोहाइड्रेट का. तो beside these nutrients, our body need dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. So the roughage is mainly provided by plant products in our food, जो कि plants के द्वारा पाया जाता है. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruit, and vegetables are the source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. ये undigested food को पचाने में काम आता है. Water help our body to absorb nutrients from food. वाटर जो है जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन throwing out some wastage from body as urine and sweat normally. तो आपको पता ही है, we get most of water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let us see if there is any source which provide water to our body. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे balanced diet. The food we normally eat in a day in our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantities. Not too much of one and not too little of the other. मतलब कि जो हमारे फूड जो है नॉर्मली जो हम लोग डाइट लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो हम लोग लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए. तो वो जो डाइट ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ ना कोई न्यूट्रिएंट्स ना कोई ज़्यादा ना ही कोई कम, ऐसा डाइट हम लोग को लेना चाहिए. ये इसी को हम लोग द डाइट फूड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर. ये भी होना चाहिए आपको डाइट में. तो ऐसे डाइट को हम लोग एक बैलेंस डाइट बोलते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? इसका हम लोग को आगे पता चलेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि सभी को सेम डाइट चाहिए होती है, या फिर क्या आप सोचते हैं कि एक बैलेंस डाइट जो है हर एक आदमी के फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहा है? तो इसका आगे हम लोग पता चलेगा. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. मतलब कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जो आप पूरे वीक में खा रहे हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं क्या वो उसमें प्रेजेंट है नहीं है वो देखें. तो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट, सीड्स, फर्मेंटेड फूड जो कि साउथ इंडिया में फूड सच एज इडली इसको फर्मेंटेड फूड बोलते हैं. ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना,
spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो ये जो आपके पास लिस्ट है, ये जो है, ये इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, एक्सपेंसिव डाइट नहीं है, ये आप इसको टेक कर सकते हैं। अब है ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सही प्रकार का भोजन करना ही इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost। कि सही प्रकार का भोजन खाना ही जरूरी काफ़ी नहीं है, कि वो ये भी होना चाहिए कि वो अच्छे से प्रॉपरली उसको पकाया गया हो, जैसे जिसके कारण कोई भी न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो उसमें। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या पता है कि प्रोसेस कुकिंग के प्रोसेस के दौरान या उसके बनाने के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कई लॉस हो जाता है। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वास्ट आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, द मैनी रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन्स, सम विटामिन्स। मतलब कि अगर सब्जी को काट के अगर धोया जाए, काट के धो के काटा जाए नहीं बोला, काट के धोया जाए, तो कुछ इसमें विटामिन जो है लॉस्ट हो जाते हैं। द skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। तो वही बात है कि राइसेस को भी धोने पर में, ज़्यादा धोने पर में, पल्सेस को भी ज़्यादा धोने पर में उसमें से मिनरल्स जो है प्रेजेंट होती है, मिनरल्स विटामिन होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम लोग तो जानते हैं कि कुकिंग से जो फूड का जो भोजन होता है उसका टेस्ट बढ़ता है और उसके डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्प मिलती है कुकिंग से। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients। सेम टाइम पर जो स्वाद देता है और इजी होता है डाइजेशन में, तो इसी टाइम पर में भी कुकिंग जो है न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस होता है उसका भी कारण होता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। अगर कुकिंग के दौरान अगर एक्सेस वाटर यूज़ किया जाए तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट लॉस। तो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो कुकिंग के दौरान अगर हीट होती है तो इजीली लॉस हो जाता है वो। वुड इट नॉट बी sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अभी आता है Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time। A katori ball of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rice food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat। तो बूझो जो है वो सोचता है एक कटोरी फैट जो है कहीं ज़्यादा एनर्जी देगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कार्बोहाइड्रेट से एक कटोरी से। तो वो ऐसे फूड टेक करता है एक कटोरी फैट जिसमें फैट कंटेंट होता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ऐसे फूड जिसमें कि फैट कंटेंट है वही खाता है वो। डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या ये सही है?
कि वो सभी ये सब चीजें खा रहा है केवल और कुछ नहीं टेक कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर us to eat too much of fat rich food, and we may end up suffering from a condition called obesity. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. Diseases like that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, इसका मतलब हुआ कि ये तो जो पर्सन जो है, जो ये लंबे समय से किसी के साथ हो रहा है, ये वो कमी महसूस, उसके पास इस न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी, और कमी होने के कारण में इन न्यूट्रिएंट्स के उनके शरीर में कई सारी डिजीज, कई सारी बीमारियां, कई सारे डिसऑर्डर्स होने लगेगी, और इस डिजीजेस के जो लैक जो न्यूट्रिएंट्स के कारण जो डिजीज होती है उसको डिफिशियंसी डिजीज हम लोग कहते हैं. इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक व्यक्ति जो है अगर लंबे समय तक प्रोटीन ना ले अपने भोजन में, he she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. एक बीमारी होती है, ये सब हो सकती है उसको अगर लंबे समय तक प्रोटीन इंटेक ना करे. If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. अगर लंबे समय तक आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ना मिले तो आपकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक सकती है कंप्लीटली, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है. और ऐसे पर्सन जो काफ़ी दुबले पतले कमज़ोर टाइप के होते हैं, मे नॉट ऐसा हो कि इसके कारण वो चल भी ना सकें. डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. कि उनको डिफिशियंसी और डिजीज में 1.3 टेबल है. तो डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं डिफिशियंसी के कारण, तो ये टेबल में आपको दिख रहा है, तो अभी पढ़ेंगे उसको भी. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely variation food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by the body. तो अभी देखते हैं कि 1.3 में आपको क्या क्या दिया हुआ है. तो विटामिन ए क्या की डिफिशियंसी होती है, क्या डिजीज हो सकते हैं, क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं. लॉस ऑफ विजन, आपको दिखना कम बंद हो सकता है. पुअर विजन, आपको सिम्टम्स क्या देंगे, पुअर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन. ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर विटामिन ए की कमी आपको हो. और बी नाम है विटामिन B1. विटामिन B1 के कारण से आपको बेडी हो सकती है. वीक मसल्स हो सकते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं इसका, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपको थकान सी महसूस होगी, कम एनर्जी. ऐसे ही विटामिन C
सेकेंडरी भी हो सकती है। क्या हो सकता है आपको? ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ये सब हो सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ऐसे हो सकता है। विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके, ये हो सकता है। आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो सकता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेल, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, बताइए। और आयरन जो है, एनीमिया, वीकनेस, कारण ऑफ द वीकनेस महसूस होगी, एनीमिया हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके समरी प्लस जो इसके क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, इसको डन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयार करें इस लेसन को, फिर से अपने से रीडिंग करें। चलिए।